Bismillahirrahmanirrahim. Today is the fifth lecture of your series, and in this lecture, we'll discuss extreme value theorem, which you might have learned in your earlier classes, particularly in calculus. And then we'll discuss some examples. We'll solve questions from your book, and we'll also try to apply the learned methods. For example, Newton methods, bisection method, secant method, and the method of false position. We'll see how we can apply, how we can use these method in finding the extreme value of a given function. So let's start from the uh, statements. So if f belongs to the continuous interval a and b, so what does it mean? It means f is a kind of a function which belongs to the set which belongs to a set. So you should remember this sign is used when on the right side there is a set and on the left side there is an element. So f is a function which is an element of a set, of a bigger set, and this set is containing the continuous functions, and the continuous function is not defined from minus infinity to infinity, but these functions are defined in the interval a and b. तो हमारे पास वो continuous functions हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ a और b जो इंटरवल है इसके अंदर डिफाइंड हुए हैं. तो a और b के अंदर जो फंक्शंस डिफाइंड हुए हैं, देयर आर इन्फिनिट मैनी, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि a और b में कंटिन्यूस होते हैं, and this function f is one of them. So then there exist two real numbers c1 and c2 within the interval ab. So from a to b there exist two numbers c1 and c2 with the property that for all x in the interval a and b, means that we can take any value within the interval x. We can take this x, we can take this as x, we can also take this as x. So x is an arbitrary value, any value between the interval a and b. Okay, so if c1 and c2 belongs to ab, then for all x the functional value of x will be between f of c1 and f of c2, the functional values of c1 and c2. अब देखें यहाँ पे कि क्या कहना चाह रहा है हमारे पास c1 और c2, हमने ये हमारे पास दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, ये ख़ास वैल्यूज़ हैं जो कि a और b के बिटवीन लाई करती हैं, और ये इम्पोर्टेंट किस तरह से है, जब हम c1 लेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी, इसको हम बोल देंगे f ऑफ c1. ओके, और सिमिलरली c2 पे जो हमने फंक्शनल वैल्यू ली है वो हमारे पास आ जाएगी f ऑफ c2. अब ये वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, हम ये दावा कर रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो c1 और c2 इस इंटरवल के दरमियान लाजमी एग्जिस्ट करेंगी, और वो कैसी होंगी कि ऑल अदर वैल्यूज़ आर बिटवीन देयर फंक्शनल वैल्यूज़. तो c अगर हम यहाँ पे कोई भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे x लिया है, तो इस पॉइंट से भी जब मैं जाऊँगा, लेट से ये मेरे पास उसका फंक्शनल वैल्यू ये x हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये f ऑफ x हो जाएगा. सो सी
कि जब हमने x कोई भी वैल्यू ली इसके बिटवीन, तो f ऑफ x जो है इट इज इन बिटवीन f ऑफ c1 एंड f ऑफ c2, इन दोनों के दरमियान में आया है। अब यहाँ के अलावा किसी और जगह भी ले सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस जगह पे ले लेता हूँ x को, तो ये मेरे पास f ऑफ x बनेगा। अगेन यहाँ पे f ऑफ x आ गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ इस जगह पे, तो अब देखिए मेरे पास f ऑफ x ये बन गया। अगेन f of x is in between f of c1 and f of c2। तो इसका मतलब ये हो गया कि f of c1 जो है ये मिनिमम फंक्शनल वैल्यू है, कि इससे छोटी कोई वैल्यू और नहीं आ सकती। आप कोई भी वैल्यू ले लें a और b के दरमियान, तो फंक्शनल वैल्यू जो है वो f of c1 से छोटी नहीं आ सकती। और f of c2 जो है इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू if you take any value between the interval a and b, the functional value will not be greater than the value of f of c2। इट मीन्स कि आपकी जो भी फंक्शनल वैल्यू होगी वो f of c1 और f of c2 के दरमियान होंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि c1 पे फंक्शन जो है वो मिनिमम है और c2 पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। दोबारा से स्टेटमेंट की तरफ आते हैं हम कि if f is a function belongs to the set of continuous function defined in the interval ab, then c1 and c2 belongs to the interval ab exist with the property that f of x is greater than or equal to f of c1 and less than or equal to f of c2 for all x belongs to ab। x is any number, we can choose any number in between the interval। तो जो भी अब इसकी फंक्शनल वैल्यू होगी वो f of c1 से बड़ी होगी या बराबर होगी और f of c2 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। इन एडिशन, अच्छा ये सेकंड स्टेटमेंट हम बाद में देखते हैं, अब इसमें हम थोड़ी सी वेरिएशंस देख लेते हैं कि और क्या वेरिएशंस यहाँ पे पॉसिबल है। सो फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारे पास इंटरवल कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं पे भी एंड हो सकता है। तो सिंपल सी ले लेते हैं एग्जांपल, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो इस केस में अगर आप देखें तो C1 और C2 कौन सी वैल्यू होंगी, यानी C1 और C2 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि C2 पे आंसर मैक्सिमम हो और उससे बड़ा आंसर ना आता हो, और C1 पे आंसर मिनिमम और उससे छोटा आंसर ना आता हो। तो डायरेक्टली आप कहोगे कि C1 इज इक्वल टू A एंड C2 इज इक्वल टू B, क्योंकि f of C1 यहाँ पे बनेगा और f of C2 यहाँ पे बनेगा। और इस केस में बाकी सारी की सारी वैल्यूज, आप कोई भी वैल्यू लो बिटवीन x कोई भी ले लो कहीं पे, तो लाजमी तौर पे इनके दरमियान ही आएगा। अच्छा, so let's say we take another function, it has starting value a and final value as b। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन की जो मिनिमम है वो इस जगह पे है और मैक्सिमम जो है वो कहीं टॉप पे आ रहा है, लेट्स से इस पॉइंट पे। तो अब हमारे पास जो c1 होगा वो यहाँ पे ले लेंगे और c2 हम यहाँ पे लेंगे। तो आप देखेंगे कि अब भी बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो x कहीं भी हम लेंगे, चाहे यहाँ पे ले लें तो इसकी फंक्शनल वैल्यू उसके बिटवीन आएगी, चाहे यहाँ पे ले लें तो इसकी फंक्शनल वैल्यू उसके बिटवीन आएगी। तो हमें ये पता चल गया कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो हम दो सीज ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि एक सी पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और एक सी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। तो इन दोनों सीज को हम कहते हैं, ये दोनों सीज जो हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। जो मैक्सिमम है वो भी एक्सट्रीम है, जो मिनिमम है वो भी एक्सट्रीम है। तो इनको एज अ होल वी से दैट दीज टू वैल्यूज आर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस। एक बिल्कुल
हाइट पे है और एक बिल्कुल डेप्थ पे है। ओके, अच्छा अब दूसरी जो स्टेटमेंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि इन वैल्यूज़ को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ पे मौजूद होंगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने इनको फाइंड कैसे करना है। इन एडिशन, अब इसके लिए जो हम फाइंड करने जा रहे हैं इसके लिए ये लाजमी है ये वाली बात, ठीक है। इन एडिशन इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, ये जो फंक्शन हमने पहले लिया था सिर्फ कंटिन्यूस था, so not all continuous functions are differentiable, so that's why we are adding it. So if f is differentiable on the interval ab, so you must have remembered that if we talk about a differentiability of a function, then we always consider an open interval, an interval in which a and b are excluded. And the reason is because if we try to approach a from the left hand side, then we cannot, because there is no point on the left hand side. And the second thing is, if you want to approach b from the right hand side, then the right hand side limit will not exist. So in this case, the derivative of at a and b are not possible, so we are only considering the numbers in between them. So f is differentiable in the interval between a and b. So then the number c1 and c2 occurs either at the endpoints of AB or where f prime is 0. Earlier we have seen this example. अब यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि या तो एक्सट्रीम वैल्यू एंड पॉइंट पे होगी या फिर वहाँ होगी जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। ये वाली बात आपने याद रखनी है, या तो एंड पॉइंट्स पे होगी, ठीक है, या तो एंड पॉइंट्स पे एक्सट्रीम वैल्यू होगी या फिर वहाँ होगी जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी, यानी जो एंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो या तो एंड पॉइंट पे होंगी। फॉर एग्जांपल ये इस केस में देखें C1 ये A है और ये B है, और देखें और एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी एंड पॉइंट्स पे हैं, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो फंक्शन के एंड पॉइंट पे होगी। अब अगर फंक्शन के एंड पॉइंट पे नहीं होगी तो कहाँ होगी। अब इस केस में सिर्फ C1 जो मिनिमम वैल्यू है वो फंक्शन के एंड पॉइंट पे है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे नहीं है। वो कहाँ पे है, वो वहाँ पे है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। आपको पता है कि जब कोई फंक्शन अपनी पीक से होके वापस आता है तो इस पीक के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। एंड सेकेंडली हमने ये सीखा है जब हम न्यूटन मेथड से सेकंड मेथड डेवलप कर रहे थे, और उसमें हमने देखा था कि न्यूटन मेथड फेल कहाँ पे होता है। तो न्यूटन मेथड फेल वहाँ पे होता है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो किसी भी पॉइंट पे। तो डेरिवेटिव कब 0 होता है, जब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप 0 होता है। तो डेफिनेटली जब टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो उसका स्लोप उस वक्त 0 हो जाएगा। तो एट द मैक्सिमम द डेरिवेटिव इज 0, तो वो यही बात कह रहे हैं। मैक्सिमम भी कह सकते हैं, मिनिमम भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे लेके चले जाएं तो यहाँ पे एक मिनिमम भी हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भी ये स्लोप जो है यहाँ पे 0 हो रहा होगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं या तो वो एंड पॉइंट्स पे होंगी या फिर वहाँ होंगी जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो रहा होता है। तो हमने इन तमाम जगहों को एवेलुएट करना होगा और कंपेयर करके बताना होगा कि किस जगह पे हमारे पास डेरिवेटिव 0 हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम आपकी बुक से चलते हैं और बुक से कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। Okay, so let's start from the very first question. This is from exercise 1.1 and question is 4.
आप इसको अपनी बुक में बर्डन एंड फेयर में चेक कर सकते हैं। सो फाइंड मैक्सिमम, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये अगर समझ आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमने मैक्सिमम फाइंड करना है और मैक्सिमम में हमारे पास देखें हमने कहाँ पे मैक्सिमम चेक करना है, इस इंटरवल में विच इज़ फ्रॉम ए टू बी, और दिस साइंस रिप्रेजेंट दैट वी वुड लाइक टू फाइंड द मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे फंक्शन मूव कर रहा है, अब इस केस में आप देखें, एक तो इस पॉइंट पे आपके पास डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ये c1 हो जाएगा, एक इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ये c2 हमारे पास हो जाएगा। अब फंक्शन की बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ इन दोनों के दरमियान ही लाई करेंगी, लेकिन ये वैल्यू जो होगी ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू जो है हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू है। जब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो इस वैल्यू का साइन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव साइन जब हम उसको, फॉर एग्जांपल ये -7 आ रहा है और ये 2 आ रही है, तो इन दोनों का जब हम एब्सोल्यूट लेंगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा और इसका आंसर 2 ही रहेगा। अब इस केस में हमारे पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है दैट विल बी 7, यानी C2 पे जो वैल्यू आ रही है हम इसको कहेंगे ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो सिंपली जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें से हम मैक्सिमम बता देते हैं और मिनिमम बता देते हैं, यानी C1 पे मैक्सिमम वैल्यू है और C2 पे मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताना है तो आपने जो मिनिमम और मैक्सिमम है इन पे एब्सोल्यूट साइन अप्लाई कर देना है, और अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो जो सी वैल्यू बड़ी होगी वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। So when we start doing solution, we always write this statement that extreme values lies either at the endpoints or where f prime is 0 और derivative is 0। तो सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं, फंक्शन हमारे पास है f of x is equal to 2 minus e to power x plus 2x। we have a space, we can write below it, and the interval given is from 0 to 1। तो first we will check at the end points। तो end points में हमारे पास आ गया f of 0 is equal to 2 minus e to power 0 and 2 into 0 divided by 3। so e to power 0 is 1, so 2 minus 1 over 3, so it is equal to 1 over 3। and f of 1, the second end point, so 2 minus e to power 1 plus 2 into 1 divided by 3, so 2 plus 2 is 4, 4 minus e divided by 3। so let's say let's see what is the value of 4 minus e over 3। so the answers are 0.333, 3 is the repeating value, and it for 4-digit answer is 0.4272। so next digits is are 39। अगर हम अगले डिजिट्स कंसीडर करेंगे तो हमें 9 की वजह से 3 को 4 करना पड़ेगा। सो यू कैन स्टॉप हियर। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगली बात क्या है, और हमने कहाँ पे चेक करना है, और हमने चेक करना है कि डेरिवेटिव कहाँ पे 0 है। सो वील हैव टू सी वेयर द डेरिवेटिव इज 0। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और हमने ये देखना है कि इंटरवल हमारे पास वही है। अब देखिए डेरिवेटिव जो है वो इस इंटरवल से बाहर भी 0 हो सकता है, लेकिन इस इंटरवल से बाहर 0 होगा तो हमें उसका फ़ायदा नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हमने कंसीडर करने हैं एंड पॉइंट्स 0 to 1। 0 1 पे ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं एंड पॉइंट्स पे, अब हम देख रहे हैं विद इन द इंटरवल। सो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 1/3 हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू पावर एक्स आएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 2
minus e to power x over 3. It is equal to 0. It implies 2 minus e to power x equal to 0. It implies 2 is equal to e to power x, and that implies नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड इट इज इक्वल टू 0.6931। तो हमारे पास देखें x की वैल्यू एक सेंटर में हमने फाइंड कर लिया, ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ये x इज इक्वल टू 0.693 पे 0 हो रहा है। तो एक तो हमें ये देखना था कि या तो एंड पॉइंट्स पे होंगी या फिर उस पॉइंट पे होंगी जिस पे डेरिवेटिव 0 है। इस पे डेरिवेटिव 0 है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो f ऑफ 0.6931, सो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 माइनस ई टू पावर x प्लस 2x ओवर 3 में। सो वी हैव आंसर 0.4621 आफ्टर डूइंग राउंड अप। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज आई हैं। देखें हमारे पास इनमें सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज भी है, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं है जो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सॉरी ये आखिरी वाला हमें दोबारा से करना पड़ेगा। ये आखिरी वैल्यू ये है ना, वो तो पॉइंट था। तो इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 0.4621 है, ये मैक्सिमम आ रही है, और मिनिमम हमारे पास ये आ रही है। अगर सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन होगा तो हम कह देंगे, हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं दोनों स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। विल सी, हम कहेंगे कि फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड अ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अगर हम एब्सोल्यूट की बात नहीं करेंगे, अगर हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे कि फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे मॉड साइन जो है वो भी यूज कर लेते हैं, लेकिन सिंस यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो फंक्शन इज हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। अच्छा, ये एक सिंपल अप्रोच थी हमारे पास, यहाँ पे चीज़ें डिफ़िकल्ट अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन चीज़ें डिफ़िकल्ट जो होंगी हमारे पास वो होंगी इस पार्ट में। इधर अब एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे देखें हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम एक तरफ ले आए और आसानी से हमने नेचुरल लॉग ऑफ 2 एक आंसर हमें मिल गया था कि इस नेचुरल लॉग ऑफ 2 द एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे हम अगर हम चाहें तो का ग्राफ भी बना सकते हैं, और ग्राफ इसका ऐसे होगा कि ये 0 पे चूँकि मिनिमम हो रही है और मैक्सिमम हो रही है नेचुरल लॉग ऑफ 2 पे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो ये हमारे पास वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम इसका एक ग्राफ भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व किया बड़ी आसानी से आंसर आ गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आपने फाइंड किया और ये जो न्यू एक्सप्रेशन आपके पास आया, लेट्स वी कॉल इट जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो न्यू एक्सप्रेशन हमारे पास आया एफ डेरिवेटिव लेने के बाद, एफ ऑफ एक्स तो नहीं है ना, ये तो जी ऑफ एक्स है। अगर ये डिफ़िकल्ट फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया और हम यूजुअल मेथड से इनको सॉल्व ना कर सकें, तो अब यहाँ पे हमें न्यूटन मेथड, बाइसेक्शन, सीकेंड या द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, इनमें से कोई मेथड यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और इस स्टेज पे जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको इस यहाँ से अब आपको नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा।
यानी अगर आप जी ऑफ एक्स आप बोल चुके हैं उसको, तो आपके पास न्यूटन मेथड अप्लाई करते हुए इस तरह बनेगा पी एन माइनस, अब देखिए जी ऑफ पी एन एंड जी प्राइम ऑफ पी एन। ये जी ऑफ पी एन जो है ये आप एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू लिख, ये वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये लिख देंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ ये आपका जी ऑफ पी एन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे अब, तो वो जी प्राइम ऑफ पी एन हो जाएगा। तो याद रखना ये स्टूडेंट्स कई दफ़ा गलती क्या करते हैं, मैंने इसलिए जी ले लिया वो क्योंकि न्यूटन मेथड पे एफ लिखा होता है, तो एफ लिखने की वजह से वो बजाय कि ये वाला फंक्शन लें वो ऊपर वाला फंक्शन जाके उठा लेते हैं, ये मैन एफ ऑफ एक्स उठा लेते हैं। तो हमने इसको तो सॉल्व नहीं करना, हमने तो सॉल्व इसको करना है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि इसको आप नाम जी ऑफ एक्स दे देंगे और फिर जी ऑफ एक्स कह के इस पर न्यूटन मेथड या सीकेंड या बाइसेक्शन दी मेथड ऑफ फॉल पोजीशन इनमें से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। एक हम प्रॉब्लम लेते हैं इस तरह की, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल वन है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ था मैपल में, कॉपी हो गया है कि वो। सो इन एग्जाम्पल वन, use Maple to find the absolute minimum and absolute maximum values of the function। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक आई हुई है, एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे नहीं है, तो एफ 5 कॉज ऑफ 2x माइनस 2x साइन ऑफ 2x, और हमने ये एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है 1 एंड 2 में और 0.5 एंड 1 में। सो मैं ट्राई करता हूँ 1 एंड 2 में, आप लोग ट्राई कीजिएगा 0.5 एंड 1 में। तो मैं इस इंटरवल में ट्राई कर रहा हूँ पार्ट ए। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 cos of 2x minus 2x sin of 2x। तो so extreme value either lie at the end point or where derivative is 0। तो हम चेक करते हैं कि f of 1 पे क्या वैल्यू है और f of 2 पे क्या वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने से पहले आपने देखना है कि आपका कैलकुलेटर रेडियन में हो, अगर डिग्री में होगा तो हमारी कैलकुलेशंस जो है वो गलत हो सकती है। अभी हमने इनके एब्सोल्यूट नहीं लिए, लेकिन जो हमारे पास आंसर्स हैं वो एक 1 पे -3.89933 है और f2 पे है -0.241008। The second task is we have to check f prime of x equal to 0 within the interval 1 and 2। अब हमारे पास देखिए फंक्शन जो है ना f प्राइम ऑफ x आ गया एंड वी कैन कॉल इट g ऑफ x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये मेरे पास देखें कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -10 -2 साइन ऑफ 2x एंड -4x कॉस ऑफ 2x। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने ऐसा फाइंड किया कि x जो है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा था, पहले x का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया -2 साइन ऑफ 2x, फिर यही -2 आगे चला और 2x का डेरिवेटिव जो है ना वो फिर 4 हो गया और साइन 2x का डेरिवेटिव हो गया cos 2x। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, तो इसको कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -12 साइन ऑफ 2x, इधर इक्वल टू 0 भी लगा रहे हैं, और -4x cos ऑफ 2x इक्वल टू 0 एंड दिस इज अगेन g ऑफ x। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वी कैन राइट इट एज -4 कॉमन ले सकते हैं, सो 3, ये भी हम कॉमन नहीं लेते, ऐसे ही रहने देते हैं। रीज़न आपको बताऊंगा कि समटाइम ये होता है कि जो हम इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं तो वो इंटरवल से बाहर निकल जाता है 1 एंड 2, इसमें हम अभी चेक कर रहे हैं। तो एक तो हमने ये बताना है कि सबसे पहले ये बताएं कि क्या इस फंक्शन का इस इंटरवल में रूट है या नहीं है। इसके लिए आप ये करेंगे कि इस फंक्शन को 1 एंड 2 की डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक करेंगे, अगर किसी जगह साइन चेंज हो रहा है तो हम इसका रूट फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम इसका रूट फाइंड नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 2
ये हमारे पास फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। अब इसमें हम देखें कि 1 पे, 1.25 पे, 1.5 पे, 1.75 पे और 2 पे कहाँ कहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे साइन चेंज होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो हमें फिर 1.1, 1.2, 1.3 ये सब कंसिडर करने पड़ेंगे अप टू 2, और देखना पड़ेगा साइन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये इन पे साइन, हमारे पास जो इंटरवल देखिए 1 पे नेगेटिव साइन है, 1.25 पे नेगेटिव है, 1.5 पे पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब है यहाँ पे एक ही रूट मौजूद है जो कि 1.25 और 1.5 के इन बिटवीन है। तो अब हमने जी ऑफ एक्स इसको सॉल्व करना है इस इंटरवल के अंदर, और वो रूट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए यहाँ पे अब आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बाइसेक्शन से न्यूटन मेथड, सीकेंड मेथड और द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि जहाँ पे अगर न्यूटन मेथड आप इजीली लगा सकते हैं तो वहाँ पे आप न्यूटन मेथड अप्लाई करें। अब न्यूटन मेथड में हमारे पास देखिए पी एन प्लस 1 पी एन माइनस जी ऑफ पी एन ओवर जी प्राइम ऑफ पी एन। अब इसके लिए हमें जी प्राइम ऑफ पी एन भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी जी प्राइम ऑफ एक्स ये कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जी साइन 2x डेरिवेटिव कॉस 2x होता है तो माइनस 24 कॉस 2x, अगेन -4 यहाँ पे हम कॉमन ले लें अगर, और x cos 2x का डेरिवेटिव जब हम ले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, cos ऑफ 2x हमारे पास एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद हमारे पास x एज इट इज़ आया, और cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 साइन ऑफ 2x, ठीक है, -2x साइन ऑफ 2x। इसको ओपन किया, -24 cos ऑफ 2x, ये हो जाएगा जी -4 cos ऑफ 2x, ये हो जाएगा +8x साइन ऑफ 2x। तो अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे फार्मूला बना वो बन गया जी पी एन माइनस जी ऑफ पी एन की जगह पे आ गया -12 साइन ऑफ 2x -4x cos ऑफ 2x डिवाइड बाई ये -28 हो गया cos ऑफ 2x और +8x साइन ऑफ 2x। यहाँ पे हम चाहें तो ये -4 कॉमन लेकर इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे ही कैलकुलेटर में इसको सेव कर सकते हैं। और n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो मूव कर रही है वो 0, 1 एंड 2 इस तरह मूव कर रही है। तो टेबल अगर हम बनाने की कोशिश करें यहाँ पे तो n और पी एन, सो n 0 पे लेट से जो हमने इनिशियल गैस है वो ले लिया 1.4। अब जब हम 1 पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, इसको मैंने कैलकुलेटर में एज इट इज़ सेव किया हुआ है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ अपने ख्याल करना है, मुझसे मिस्टेक हो गई है, वो ये कि